Hello dear students, so today is the turn for vector algebra. We are going to discuss the question based on exercise, miscellaneous exercise and previous year board question based on vector algebra. There could be some question mixed of 3D and vector regarding shortest distance between the two lines and such type of questions. Mainly questions based on the vector algebra, discussing about the dot product of the two vector, cross product of the two vector, scalar triple product and vector triple product. जो स्कूल एग्जाम्स में होता है वो दैट इज अप टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो आई होप दैट मेन बेसिक कंसेप्ट्स आर क्लियर. सो आई एम गोइंग टू टेक मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन. ओके, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन विदाउट एनी डिले. बट क्वेश्चन इज three vectors are given, a vector, b vector, c vector in terms of I cap, j cap, k cap, and are such that three vectors are such that a vector plus lambda times b vector is perpendicular to c vector. That's the information been given to you, and you need to be finding out the value of lambda. A vector plus lambda times b vector is perpendicular to c vector. Two vectors are said to be perpendicular if their dot product, scalar product becomes 0. Scalar product resultant is scalar, so resultant is 0 there. Okay, a vector plus lambda times b vector, simply you just calculate this. A vector plus lambda times b vector, lambda is multiplied here and added here. Okay, so it is going to be, direct कर रहा हूं मैं, it is going to be 2 minus lambda I cap plus 2 plus 2 lambda j cap plus 3 plus lambda k cap. Okay, ये हो गया आपका वेक्टर a vector plus lambda times b vector, and it is perpendicular to c vector. Take the dot product of a plus lambda b with c vector, and since it is given it is 0, तो 0 डायरेक्ट अप्लाई करो आप यहाँ पर. डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, perpendicular vector है. When we say dot product, we are very much aware of the fact that I dot I1, J dot J1, K dot K1, and remaining I dot J, J dot I, K dot I, K dot J, all these are 0. So हम directly use करना चाहेंगे, बिल्कुल use करना चाहेंगे. So it is, this is dot C, I dot I1, डायरेक्ट बात करना चाहेंगे, है ना. अब आप समझते हैं इतना. I dot I1 3 times 2 minus lambda j dot j1 plus 2 plus 2 lambda. बिल्कुल सिंपल, कुछ भी खास नहीं. डॉट नहीं, मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, ठीक है, इक्वल्स टू 0. बिकॉज ऑल अदर ना I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, ये सब 0 हो जाएंगे ना. म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आर देयर. ओनली यू नीड टू यूज हियर I डॉट I1 equals to J dot J1 equals to K dot K1. Right? So ठीक है, just calculate it. 6 minus 3 lambda plus 2 lambda equals to 0. It is going to be 6 plus 2, which is 8, minus 3 lambda plus 2 lambda minus lambda, lambda equals to 8. Value of lambda is coming equals to 8. It's a very simple question. But if it is a simple question, बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो आप गलत नहीं करोगे. इवन सच क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन योर जेईई मेंस एग्जाम ना. ऐसा नहीं हर क्वेश्चन बहुत टफ होता है. कई बार सिंपल से सवाल होते हैं, लेकिन कई बार हम उसे कैलकुलेशन एरर कर देते हैं या अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है. वैसा नहीं होना चाहिए. तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स. यू नो द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वेक्टर्स आर 1 such that sum of the three vectors is equals to null vector. You also know that sum of three vectors is going to be a vector only. It's a null vector, not saying 0. Find the, make a change there. Find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. Value क्यों कहा गया है? Find the value. The reason is scalar product gives you the output as scalar value 2, 4, 8, minus 8 वैसा. So we are going to take all the concepts through questions, right? So start with this question. Magnitude wise तीनों vectors 1 है. Okay,
गिवन इन्फॉर्मेशन, इस गिवन इन्फॉर्मेशन को आपको यूज करना है और आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर ए डॉट ए, बड़े काम की बात है ये, इसी को हम स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर बोल रहे हैं। उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। इज इट ओके? सो आई कैन डेफिनेटली से would be equals to using this clearly, ठीक है, a plus b plus c modulus of that and square of that है ना is equals to this. A dot a plus a dot b plus, taking the dot product using the distributive law. A dot c plus b dot a, लिख रहा हूं पूरा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, बट ठीक है एक बार समझ लीजिए, b dot b plus b dot c plus c dot a plus c dot b plus c dot c, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, और मैग्नीट्यूड लूंगा तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, so this is 0. Just observe here, this is a dot a, magnitude of a square, b dot b, magnitude of b square, or c dot c, magnitude of c square, plus a dot b is same as of b dot a, है ना, b dot c is same as of c dot b, so I can definitely write twice of a dot b plus b dot c plus c dot a. यूनिट वेक्टर से ऑलरेडी गिवन है आपको, तो इट इज 1 plus 1 plus 1 दैट इज 3, राइट? इसे लिख सकता हूं मैं so this a dot b plus b dot c plus c dot a, twice of that is equals to -3. ठीक है, तो a dot b plus b dot c plus c dot a is equals to -3/2, जो आपसे पूछा गया, that value is coming equals to -3/2, and that's the complete procedure. So whatever concepts is coming there inside the question, वो सब मैं आपको explain करते जाऊंगा, तो it is going to be revision of the concepts as well as topic और questions अपनी जगह. Basically when we talk about the dot product of the two vector, तो dot product का geometrical interpretation is nothing but the projection of a vector on another vector. If I say projection of, derivation is there in the classes, वो definitely आप go through कर सकते हैं, but फिलहाल एग्जाम के point of view से projection of a vector on b vector is equals to a dot b अपॉन जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना होता है उसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना होता है उसका मैग्नीट्यूड. So it is clearly application of the dot product or scalar product, a dot b upon magnitude of b. So projection of the vector on the second vector, so it is going to be I cap 3j cap plus 7k cap dot. Right? On this vector, so take the magnitude of that. I dot I1, j dot j1, k dot k1 remaining 0, I dot I1 7, j dot j1 minus 3, k dot k1 this is 49 plus 1 plus 64. NCERT based question है, exercise का unsolved सवाल है. I'm going to take the question from NCERT unsolved exercise as well as miscellaneous exercise and previous year boards. So this is 56 plus 3,
4, that is 60 upon 50, this is 64, 114, root 114. बट उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना, दैट्स द रिजल्ट देयर. 1 मार्क 2 मार्क की कैटेगरी में क्वेश्चन होगा और आप गलत नहीं करेंगे. So take a question based on the cross product or vector product of the two vectors. Find lambda and mu if this vector cross the second vector equals to null vector. You are very much aware that dot product of the two vector is a scalar value 0. अगर आप 0 बोलेंगे या 1 बोलेंगे 2, that's a scalar value 2 4 6 8 -2 -4 -6 8 whatever scalar value. But when we talk about the cross product or vector product, resultant is a vector there. So that's why it is null vector. So आपसे कहा गया है lambda और mu बताओ provided the cross product of the two vector is equals to null vector. One more thing, जो कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं आपको ऐड करता रहूंगा. When we discuss about the collinearity of the two vectors, दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो उस केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ नल वेक्टर. Why? Because when we say A cross B, that is mod A mod B sin theta n cap. और अगर आप कहोगे कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स में थीटा कुड बी 0 डिग्री और 180 डिग्री. इन दैट केस साइन थीटा बिकम 0. सो क्रॉस प्रोडक्ट अगर नल वेक्टर आ रहा है इसका मतलब दोस टू वेक्टर्स, दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स आल्सो. दैट आल्सो यू कैन कंक्लूड. सो ओके, लेट्स सी दिस. जहां तक कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है, डायरेक्टली यू कैन डेफिनेटली राइट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप. डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो 2 6 27, second row 1 lambda mu, that is the third row, is equals to null vector. That's how you write A cross B is equals to I cap j cap k cap A1 A2 A3 B1 B2 B3, provided A vector is represented by A1 I cap plus A2 AJ A2 j cap plus A3 k cap and similarly B vector. तो सेम इज डन देयर. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं. आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप 27, ठीक है ना, माइनस 2 म्यू प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6. अब आपसे कहा गया लेमडा और म्यू फाइंड आउट करो. बोले सर ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या किया जाए. देखो जीरो वेक्टर सॉरी नल वेक्टर कैन बी रिटर्न एज ओके. सो डेफिनेटली वैसे भी एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं, शायद कुछ लोगों को समझ में आए, और वो ये कि आई जे के ये सिस्टम जो होता है सिस्टम ऑफ वेक्टर. बोले सर आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं. बिल्कुल होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट इज परफेक्ट. ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का एक सिस्टम होता है. बोले सर कैसे? आई केप इज अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, जे केप इज अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर एंड के केप इज अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर. तो इट इज नॉन कोप्लेनर वेक्टर सिस्टम हो गया. एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग. सो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का जो सिस्टम होता है, और वो कैसा सिस्टम होता है, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर. व्हेन आई से लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर, इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप वुड बी इक्वल्स टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप राइट would be equals to 0, and coefficient of k cap is equals to 0. फिर से बोलता हूं मैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों को नहीं आइडिया, तो फिलहाल आप ये समझेंगे कि आपने इसको इक्वेट किया. आई केप का कोएफिशिएंट 0, जे केप का कोएफिशिएंट 0 और के केप का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0. द बेसिक फंडा इज आई केप, जे केप, के केप इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स व्हिच इज नॉन कोप्लेनर, एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का अगर सिस्टम है तो दैट इज गोइंग टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. So if I say, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप में से काफी लोग शायद नहीं जानते होंगे. Let's say it is like this. So I J K ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सिस्टम होने से
लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट ठीक है, आप उसको अगर नहीं समझते तो जस्ट गो थ्रू दिस। आपने इक्वेट किया 0 से लेमडा की वैल्यू इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज कमिंग इक्वल्स टू 27/2। ठीक है, लेमडा और म्यू फाइंड आउट करना था, इजीली आपने फाइंड आउट किया। क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना होता है और वो लिखा हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन इज let the vectors a vector and b vector such that modulus of a या magnitude of a is 3, magnitude of b vector is equals to √2/3, or it is also given that a cross b is a unit vector, magnitude of that is 1, और आपसे पूछा गया है बिल्कुल सिंपल सा सवाल एक्सरसाइज का, find the angle between the a vector and b vector. So a cross b, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। सिंस मैग्नीट्यूड की बात की गई है, जरूर करें, व्हेन यू टेक द मैग्नीट्यूड इट इज गोइंग टू बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज गोइंग टू बी 1, सो दैट इज इट। दिस a cross b is a unit vector given in the problem itself, so magnitude is 1 here, 1 is equals to mod a 3 into √2/3 sin theta, and sin theta is nothing, बहुत बेसिक लेवल के सवाल हैं लेकिन आप गलत ना करें, 1/√2 and theta is going to be equals to π/4। एक और बात ध्यान रखिए, whenever two vectors are given और अगर आपसे बात की गई है related with the एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की, तो डेफिनेटली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की मदद लीजिए आप। फिर से सुनिए, जब भी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स के बारे में यूजुअली क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दिस ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेने पर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा का जो डायरेक्ट एंगल है, सॉरी साइन थीटा जो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्रॉस बी मॉड ऑफ दैट, ये ध्यान रखिएगा भाई, दो वेक्टर्स गिवन है ऑलरेडी आपको, तो टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दैट इज ओके। टू वेक्टर्स आर गिवन, सो यू कैन कैलकुलेट ए क्रॉस बी यूजिंग i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3 डिटरमिनेंट फॉर्म एंड टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट आल्सो, और वो जो रिजल्ट आएगा वो साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। तो व्हेनेवर टू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज रिक्वायर्ड, यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला। दूसरी बात एक और समझिए आप यहीं पर, अगर आपसे पूछा जाता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाता है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो भी डेरिवेशन इधर से ही है। कैसे? क्योंकि अगला सवाल उसी टाइप का है, आपको बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, कहीं परेशानी नहीं आएगी। देखो ये तो क्लियर है आपको, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इस वैल्यू को अगर मैं इधर पुट करता हूं, I can write A cross B is equals to A cross B का मैग्नीट्यूड n cap, ठीक है। So n cap would be equals to, which is a unit vector, A cross B upon A cross B का मैग्नीट्यूड। That gives you the n cap is what? n cap is a unit vector which is perpendicular to the plane of A and B. So जब भी पूछा जाता है unit vector perpendicular to the two vectors, you can definitely think of this formula. ठीक है, कर पाएंगे? We'll take question based on that. So the question is, find a unit vector which is perpendicular to each of vector A plus B and A minus B, where A vector and B vector are some given vector. पूछा गया है आपसे, एज आई डिस्कस जस्ट नाउ अबाउट द यूनिट वेक्टर कंसेप्ट, यूनिट वेक्टर कैसा यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, ईच ऑफ द टू वेक्टर a plus b and a minus b. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज a plus b? लेट्स से c वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, so it is 3i plus I 4i k plus 4j k. Okay, let's say d vector is equals to a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सबट्रैक्ट किया आपने तो इट इज 2i, कैंसिल होगा, 2k प्लस 2k 4k,
So this is C vector and D vector, 4 I cap plus 4 J cap, and D vector is 2 I cap plus 4 K cap. So unit vector is required. Unit vector, just now I discussed with you, n cap is given as C cross D upon magnitude of C cross D. Application of what? Scalar product, sorry, vector product of the two vector, उसी का application है यहाँ पर. So that unit vector would be equals to, सबसे पहले उसके लिए कैलकुलेट करना होगा मुझे C cross D, that C cross D would be equals to I cap, J cap, K cap, 4I, 4J, 0K, तो 4, 4, 0, 2, 0, 4, okay, 2, 0, 4, this is C cross D, calculate it, this is 16 I cap minus of 16 J cap minus of 8 K cap. So that is your C cross D. Take the magnitude also. (16 square) 256 plus 256 plus 64. ठीक है ना, 512, 516, 576. चेक कर लीजिए एक बार भाई. दिस इज, आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं. यू कैन टेक 8 कॉमन हियर, 2I minus 2J minus K. इट इज अप टू यू. व्हाट आई वांट टू से इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 8I cap 2I cap minus 2J cap minus K cap. So simply it is going to be 8 times root over, बात वही होगी यहाँ पर भी, 4 plus 4 plus 1 which is 8 plus 1, 9, square root is 3, 24. 512 plus 64, 576, square root is going to be 24 there. ओके, इज इट ओके? एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस. ऑलरेडी आई डिस्कस द कंसेप्ट. एक बात ध्यान रखिएगा, व्हेन आई से A क्रॉस B या यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B, तो A क्रॉस B की जो डायरेक्शन है, A क्रॉस B की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B है, और B क्रॉस A की भी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B है. तो एक अगर अपवर्ड है तो दूसरी इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड, राइट? एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई वी यूज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू की बात की गई है, तो वी यूज प्लस. समझ सकते हैं आप? अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड. So that unit vector would be equals to two by three I cap minus 2 by 3 J cap minus K cap by 3. That's the unit vector and that's the solution of the question. ठीक है? Application of vector product of the two vectors की जब बात की जाती है तो that is या geometrical interpretation of vector product of the two vector या cross product of the two vectors की बात की जाती है, तो that geometrical interpretation is the, anybody, that gives you the vector area of parallelogram. When I say A cross B, what actually is A cross B? That A cross B is the vector area of parallelogram when, because vector area, because A cross B का जो result होगा, that result is there in terms of n cap. So that's why vector area of parallelogram. कैसा parallelogram? इसमें A vector and B vector are taken as the adjacent sides. तो एक सिंपल सी बात, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, जहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की गई है, इन जनरल अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में
ठीक है. इफ आई से ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो ओ ए और ओ सी दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स. और वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर बात की जाती है तो ए क्रॉस सी gives you the vector area of parallelogram. Angle between the two is some theta. That's okay. तो आपको क्या करना होता है ना, और इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, भाई हम एरिया हम वेक्टर एरिया के टर्म्स में नहीं चाहते, एरिया हम चाहते इन टर्म्स स्केलर वैल्यू, तो टेक अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. तो इट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. कैसा पैरेललोग्राम? ओ ए बी सी, जिसकी एडजेसेंट साइड्स ओ ए और ओ सी है, जिसके एडजेसेंट साइड्स जो है वो ए वेक्टर और सी वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है. तो आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली जो है टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू. यू वेरी वेल नो हाउ टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट एंड चेक द मैग्नीट्यूड. दूसरी बात, इसी पैरेललोग्राम में अगर बात की जाती है, अगर डायगोनल्स के टर्म में एक रिवीजन भी हो जाता है आपका. इफ डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, या डायगोनल के टर्म में वेक्टर्स गिवन है, या डायगोनल्स के वेक्टर्स गिवन है, इन दैट केस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज आल्सो गिवन एज हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2. ये सब रिजल्ट्स हैं जो बहुत बेहतर ढंग से आपको पता होना चाहिए. हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड. d1 d2 रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर. किसके अलाउंग है ना, दोज आर डायगोनल्स, जो है ना डायगोनल को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स हैं ये. तो अगर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, so d1 cross d2 you are going to calculate, take the magnitude of that and divide by 2. that complete derivation is there in the regular classes में आपको पूरा डेरिवेशन मिलेगा, बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडजेसेंट साइड्स अगर गिवन है तो दैट्स द रिजल्ट, और अगर डायगोनल के टर्म में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है तो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2. फिलहाल ये जो सवाल है, सिंपल सा सवाल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की गई है जिसके वर्टाइसेस ए बी सी डी हैं. रेक्टेंगल सिंपल 90 डिग्री का एंगल ए बी सी डी. जब तक कहीं कुछ ऑर्डर मेंशन नहीं किया जाए, टेक द ऑर्डर एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना. अगर वो लिखे क्लॉकवाइज तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा है तो आप अपनी तरफ से उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कंसिडर करिएगा. ए बी सी डी. सो मुझे रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं एक काम करता हूं, इट इज अप टू मी, बट आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट एडजेसेंट साइड की बात करूं तो इफ आई टेक ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स, 90 डिग्री का एंगल है तो आपको साफ साफ समझ में आता है, बट ठीक है. ए बी वेक्टर, ये ए बी सी डी. ए बी वेक्टर अगर मैं कहता हूं तो ए बी वेक्टर में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इट इज गोइंग टू बी आई प्लस आई, 2i कैप. दिस इज गेटिंग कैंसल्ड. ओके, परफेक्ट. ए डी वेक्टर बड़ा ही आसान, लेकिन आसान है तो गलत ना हो, सीधी सी बात है. पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आई कैप इज गेटिंग कैंसल्ड, माइनस जे बाई टू माइनस जे कैप और 4k कैप इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड. आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ए बी इज कमिंग अलोंग आई कैप, केवल आई कैप की टर्म है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है ये, ठीक है. और जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग, अपोजिट टू वाई एक्सिस. 90 डिग्री का एंगल तो वैसे भी क्लियर है आपको, रेक्टेंगल है तो ठीक है. तो दैट इज ओके, ठीक है, मतलब हम सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं. तो इफ आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी क्रॉस ए डी, ठीक है. इट इज गोइंग टू बी ए बी क्रॉस ए डी. ए बी क्रॉस ए डी आपको इन जनरल निकालना है तो आई जे के A1 A2 A3, बट यहाँ पे जरूरत नहीं भाई. आपको अगर ए बी क्रॉस ए डी निकालना है तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज इट कैन बी रिटन लाइक आई केप जे केप के केप. दिस इज 2 0 0 0 -1 0.
तो ठीक है, डायरेक्ट भी देख लेते हैं, बट ठीक है, इन जनरल तो आप इसी ढंग से प्रोसीड करेंगे. तो इट इज गोइंग टू बी आई कैप के अलॉन्ग इट इज गोइंग टू बी 0, जे कैप के अलॉन्ग इट इज गोइंग टू बी 0, और के कैप के अलॉन्ग यू विल बी गेटिंग समथिंग, एंड दैट समथिंग इज -2 के कैप. ठीक है, सिंस आपको तो एरिया चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाती है, तो मैग्नीट्यूड इज क्लियरली गोइंग टू बी इक्वल्स टू ये क्या कैलकुलेट किया आपने, ये कैलकुलेट किया आपने ए बी क्रॉस ए डी. ठीक है, एंड सिंस वी वांट मैग्नीट्यूड, हमें तो एरिया रिक्वायर्ड है, तो ए बी क्रॉस ए डी का मॉड दैट इज इक्वल टू 2. यहां देख लीजिए आप, 2 इज ए स्केलर वैल्यू. ठीक है, आई माइनस का कोई रिलेवेंस इसलिए नहीं क्योंकि आपको मॉड लेना है, दैट इज फाइन. और आई क्रॉस जे इज नथिंग बट के. अब आप के कैप कहें या माइनस के कैप कहें, मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1. ऐसे देख लीजिए, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2. तो सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें हमने कुछ बात और ऐड करी. सिंपल है तो गलत ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है. प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी whose side AB and diagonal AC are given by these two vector. Given information की बात वो की जाए, एक साइड गिवन है पैरेललोग्राम में और एक डायगोनल गिवन है, और आपसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड एडजेसेंट साइड्स अगर गिवन है तो इट इज ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगर डायगोनल्स d1 वेक्टर d2 वेक्टर गिवन है तो इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2. जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड. यहां पर एक साइड गिवन है और एक डायगोनल गिवन है. प्रीवियस ईयर बोर्ड्स एग्जाम में पूछा हुआ सवाल एज इट इज. सो लेट्स सी दैट. A, B, C and D. एंटीक्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखना है इसको आपको. ए बी वेक्टर इज गिवन, यहीं पर लिखता हूं टाइम सेव करने के लिए. दिस इज योर ए बी वेक्टर एंड दिस इज योर ए सी वेक्टर. देखो, या तो दोनों एडजेसेंट साइड्स हो तो काम हो जाएगा, या दोनों डायगोनल्स हो तब काम होगा. ठीक है ना, यहाँ पर एक साइड है और एक डायगोनल गिवन है. दिस इज योर ए सी. ठीक है ना. सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. यूजिंग द ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ से मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर दैट वुड बी इक्वल टू ए सी वेक्टर. कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. ट्राइंगल लॉ से ट्राइंगल ए बी सी में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर. नाउ डेफिनेटली आई कैन राइट बी सी वेक्टर वुड बी इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर. So both are given there. तो AC vector minus AB vector. तो it is going to be direct लिखूंगा I cap. This is going to be minus of J cap plus K cap. ठीक है. 4I minus 3I that is I cap minus J cap plus K cap. This is your BC vector. Perfect. BC vector आ गया. BC vector BC is clearly parallel to your AD, है ना. पैरेललोग्राम तो बनाए हुआ ही है, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है और पैरेलल है. तो आई कैन डेफिनेटली राइट नाउ दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट वुड बी इक्वल टू AB क्रॉस AD, राइट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. So it is 3I cap plus J cap plus 4K cap cross this AD is clearly parallel to BC. सेम डायरेक्शन वाली बात है तो ठीक है. तो BC हमने फाइंड आउट किया और AD वेक्टर ही हम लिख रहे हैं, तो एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर. Calculate the magnitude first and calculate the AB cross AD first. In terms of determinant, it is going to be IJK 3, 1, 4, 1 minus 1, 1.
एंड अगेन यू नीड टू टेक द मॉडुलस, वो आप जानते हैं, फिर से मॉड ले रहे हो आप, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ, आप ए बी क्रॉस ए डी कैलकुलेट करो फिर मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है। इट इज ओके, इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 4 5 आई केप माइनस जे केप के साथ में क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 3 माइनस 4, ठीक है ना, दिस इज 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस हो गया along with k cap minus 3 minus 1 minus 4 k cap. Take the magnitude. (26, 6, 32, 42) root 42 is the area of parallelogram. Is that okay? पूरा सॉल्व किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. Complete all the explanation is there and एक साइड एक डायगोनल गिवन था तो ट्राइंगल लॉ का यूज किया और काम किया हमने. Is that okay? Complete explanation is there. क्या अप्रोच होना चाहिए? जो भी सवाल आप करते हैं पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करें एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेक्टर आपने लिया, let's say xi yj plus zk, or else you can say c1i plus c2j plus c3k, it is up to you. इन दोनों को आपको यूज करना है. let's say a dot c अगर 6 दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं i dot i1 j dot j1 k dot k1. यूजिंग दैट i dot i1, so it is 2x plus y minus z equals to 6. It is one of the equation in terms of x, y, z. A dot c equals to 6. Perfect. Then comes A cross c equals to b. So A cross c, I j k 2 1 minus 1 and your c vector is x y z. That would be equals to b vector, which is 4 I cap minus 7 j cap plus k k. ठीक है. Solving further, this is z plus y. सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन चेक करते हुए चलिएगा. z plus y I cap along with j cap, it is 2z plus x plus k cap, it is 2y minus x. Is equals to 4 I cap minus 7 j cap plus k cap. एक रिलेशन एक्स वाई जेड में लेके बैठा हूं मैं और एक यहां से कैलकुलेट करूंगा. देखो दो बातें हो सकती है. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई केप, जे केप एंड के केप. डायरेक्ट बात कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, बट बेसिक लॉजिक उसमें जो रहेगा वो ये रहेगा, समझिएगा आप डायरेक्ट करके बताता हूं मैं आपको. z प्लस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ जे केप. ओके चलेगा, डायरेक्ट बात करते. 2z प्लस x is equals to 7 and this is 2y minus x is equals to 1. काफी कुछ इक्वेशंस हैं आपके पास में, x y z की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे एंड you will be getting the required vector which is c vector. easy problem, कहीं कुछ खास बात नहीं, कैलकुलेशन में एरर नहीं, उस बात को चेक करिएगा. हाँ, बेसिक लॉजिक की जो बात होती है वो ये थी कि अगर आप सारी टर्म्स को देखो, अभी तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इक्वेट किया कोएफिशिएंट ऑफ y i j k, बट बेसिक ये है कि इन सारी टर्म्स को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में
इट विल बिकम लाइक, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जितना सीखोगे समझोगे बेहतर होगा. दैट इज z प्लस वाई माइनस 4i केप माइनस ऑफ j केप के साथ में 2z प्लस x प्लस 7 प्लस k केप के साथ में 2y माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू नल वेक्टर. और सिंस आई डिस्कस अर्लियर, ये सिस्टम है आई जे के, ये जो यूनिट वेक्टर का सिस्टम है, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर का सिस्टम है. एडिशनल इंफॉर्मेशन है. सो कैसा होगा ये? लीनियरली इंडिपेंडेंट. एंड दैट्स व्हाई ये जो कोएफिशिएंट्स हैं आई कैप का शुड बी इक्वल्स टू 0, जे कैप का शुड बी इक्वल्स टू 0, कैप का दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, सी वेक्टर आ जाएगा. आप डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट बेसिक लॉजिक ये है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन. यूजुअली इस टाइप के सवाल आपको जेईई मेंस में भी काफी मिलेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, 4 पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है और आपको पता करना है, प्रूव करना है, या सॉरी, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विद दीस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर. चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, एक प्लेन में है. कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी की जब बात की जाती है तो वी टेक द हेल्प ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. वी टेक द हेल्प ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. Right? If I say, छोटा सा explanation, if A vector, B vector, C vector, if these 3 vectors are coplanar vectors, if A vector, B vector, C vectors are coplanar, in that case we say A dot B cross C, that's a scalar triple product, must be equals to 0. Resultant is a scalar 0. B क्रॉस C इज अ वेक्टर और उसका वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A वेक्टर के साथ में, तो रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी अ स्केलर वैल्यू. और कोप्लेनर के लिए दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 0. सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होता है इसका कि भाई B क्रॉस C इज व्हाट? B क्रॉस C इज अ न्यू वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C. B क्रॉस C क्या है? B क्रॉस C इज अ वेक्टर व्हिच इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C. और उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे A के साथ में, समझिएगा, B क्रॉस C इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C. नाउ यू आर टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट विथ A वेक्टर. अब आप अगर कहते हैं कि A वेक्टर इज ऑल्सो इन द सेम प्लेन ऑफ B एंड C, A B C तीनों कोप्लेनर है, इसका मतलब A वेक्टर भी उसी प्लेन में है जिसमें B और C है. तो B क्रॉस C जो वेक्टर होगा, जो कि नया वेक्टर है, जो कि B और C के परपेंडिकुलर है, वो A के भी परपेंडिकुलर होगा. एंड दैट्स व्हाई देयर स्केलर प्रोडक्ट वुड बिकम 0. दैट्स द सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट फैक्ट. सो हम क्या करेंगे यहां पर? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, या वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंडीशन A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू 0. बट 4 पॉइंट्स आर गिवन, तो आप क्या करने वाले हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D. 4 पॉइंट्स आर गिवन, तो 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन. तो सबसे पहला काम आप करोगे और वो करोगे, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट ए बी वेक्टर. किसी एक को रेफरेंस लेते हुए, ए पॉइंट को लेट्स से मैंने रेफरेंस लिया, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर. ठीक है. एक और बात समझ लीजिए, बहुत डायरेक्ट बात होती है, आप सब जानते हैं. If A vector is given by A1i plus A2j plus A3k, B vector B1i plus B2j plus B3k, C vector is C1i plus C2j plus C3k, when you solve it, it is going to be simply A1 A2 A3, B1 B2 B3 and C1 C2 C3. That determinant must be equals to 0 when you solve it. So I am calculating AB vector, AC vector, AD vector. यू कैन ऑल्सो टेक बी, मान लो बी को रेफरेंस लिया तो बी ए बी सी बी डी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सो ए बी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, सो इट इज गोइंग टू बी, कैलकुलेशन ठीक ढंग से करिएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज माइनस 2i कैप
माइनस 4j केप माइनस 6a केप. ओके, AC वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A, 3j माइनस 6j माइनस 3j केप माइनस 8k केप. AD वेक्टर 6j माइनस 6j कैंसिल होगा, ठीक है, और लेमडा माइनस 9, ठीक है. ए बी किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए आपने ए बी वेक्टर, एसी वेक्टर, एडी वेक्टर कैलकुलेट किए. नाउ जस्ट टेक ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी. जैसे यूजुअली आप बॉक्स ए बी ए सी ए डी के टर्म्स में बताते हैं हम. दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कोप्लेनर कहा गया है ना. इसे आप जो है, इसे आप बॉक्स एबीसी के टर्म्स में भी लिखते हैं. बॉक्स एबीसी क्लियरली रिप्रेजेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी विच इज ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी डॉट सी, बोथ आर सेम. सो ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी -2 -4 -6 -1 -3 -8 1 0 lambda minus 9 equals to 0. It's a simple determinant now. उस determinant को भी और आसान करने के लिए माइनस साइन आप फर्स्ट रो से कॉमन लिया, माइनस साइन आपने सेकंड रो से भी कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, प्लस हो गया. राइट हैंड साइड में भी 0, परेशानी नहीं. और फर्स्ट रो से यू कैन टेक कॉमन, फर्स्ट रो से इट इज गोइंग टू बी लाइक 2 कॉमन लिया आपने, तो इट इज 1 2 3, है ना. 1 2 3 1 3 8 1 0 lambda minus 9 equals to 0. ठीक है. आई होप ये डिटर्मिनेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, और डिटर्मिनेंट जैसे ही कैलकुलेट करोगे विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा. शैल आई डू इट? चलिए मैं लिख देता हूं आपको टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर. आई एम राइटिंग हियर प्लीज. into 3 times 3 lambda minus 27 minus 2 times lambda minus 9 minus 8, ओके, प्लस 3 टाइम्स. कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस कहीं कुछ एरर हो तो यू कैन डेफिनेटली रेक्टिफाई दैट, बट यू नीड टू सी द प्रोसीजर. 3, it is 0 minus 3 equals to 0. It is 3 lambda minus 2 lambda, that is lambda. It is minus 9 minus 8 minus 17 plus 17 plus 34, so minus 27. कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिएगा. -2 लैम्डा, 3 लैम्डा minus 2 लैम्डा, दैट इज लैम्डा. दिस इज -27 minus 3 minus 9, ठीक है. और ये हो गया आपका -17 मल्टीप्लाइड विथ -2 प्लस 34. लैम्डा वुड बी इक्वल्स टू 4 6 लैम्डा इक्वल टू 3. चेक करिएगा. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यहां यूज किया, कोप्लेनरिटी ऑफ द 3 वेक्टर्स की बात करी हमने, ठीक है ना. स्मॉल करेक्शन, सब कुछ ठीक है, बट दैट लैम्डा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 -36 प्लस 34 -2 लैम्डा इक्वल्स टू 2. देखो एक छोटी सी बात समझिएगा, सब कुछ ठीक है, लास्ट स्टेप में जाके प्लस माइनस की एरर होती है और काफी नुकसान हो जाता है. बोर्ड एग्जाम में यू विल बी गेटिंग द मार्क्स डेफिनेटली फॉर लास्ट स्टेप, 1 मार्क डिडक्ट होगा,
बट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यूजुअली प्रॉब्लम क्या आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि +4 का इट बिकम्स -1. तो यू नीड टू बी एक्यूरेट एंड यू नीड टू बी इन स्पीड ऑल्सो, बट एक्यूरेसी के साथ में सब कुछ ठीक है, बट λ2 की जगह 3 हो गया तो गड़बड़ हो गया. इन बोर्ड एग्जाम्स डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द मार्क्स. ओनली लास्ट स्टेप पे आपका 1 मार्क जो भी डिडक्ट होता होगा, बट क्यों करेंगे हम एरर, हमें सब कुछ आता है, ठीक करना चाहेंगे, राइट. So discussing the concept of coplanarity, question is previous year boards show that A vector, B vector, C vector are coplanar vectors if A plus B, B plus C and C plus A vectors are also coplanar. So ठीक है, आपको प्रूव करना है कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर कोप्लेनर होंगे प्रोवाइडेड A plus B, B plus C, C plus A वेक्टर्स आर ऑल्सो कोप्लेनर. तो हम यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन की बात करते हैं. So it is A plus B. Just now I discussed about the box ABC which is for the condition of coplanarity. तो ये 3 वेक्टर से, ये 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर वेक्टर होंगे इसका मतलब है कि ये बॉक्स A plus B, B plus C, C plus A would be equals to 0. Or in other words, you can say scalar triple product of A plus B, B plus C, C plus A must be equals to 0. है ना, यही कहा है. If these 3 are coplanar, आपको बताना है कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे. बोर्ड्स का सवाल है तो उसी टाइप से देखिए. So we started with this, which clearly represents A plus B dot B plus C cross C plus A equals to 0. सॉल्व कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप. नाउ अगेन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, B plus C cross C plus A. तो B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट C plus A वेक्टर के साथ में. डू टेक केयर, A क्रॉस B इज नॉट सेम एज ऑफ B क्रॉस A. इट इज विथ माइनस साइन, एंटी कम्यूट होता है, तो ऑर्डर का स्पेशल ध्यान रखेंगे आप. तो इट इज B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C 0 नल वेक्टर प्लस C क्रॉस A. ठीक है. नाउ अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ. तो इट इज गोइंग टू बी ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर्स के साथ में. तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए. यहां पे बेहद इंपॉर्टेंट बात जो आप जरूर जानते होंगे लेकिन एक बार रिकेप कराना जरूरी, और वो ये कि जब मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी लिखता हूं, दैट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी लिखता हूं मैं, जिसे बॉक्स एबीसी बोल रहा हूं बार बार. आपको ध्यान रखना होगा कि इफ 2 of the 3 vector become same, if 2 of the 3 vector become same or 2 of the 3 vector become collinear, है ना. If 2 of the 3 vector become collinear, that means I am talking about, let's say B vector is equals to A vector. ठीक है, और कोलिनियर हुआ तो B वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर. If 2 of the 3 vector become same या 2 of the 3 vector become collinear vector, then scalar triple product is clearly going to be equals to 0. The reason is very clear. A cross C direction is perpendicular to the plane of A and C. तो perpendicular to the plane of A and C, तो वो A के तो perpendicular है ही है, तो डॉट प्रोडक्ट क्लियरली 0. तो 3 में से 2 वेक्टर अगर सेम हो जाते या कोलिनियर होते, उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा. तो सेम इज हैपनिंग हियर, उसी को एक्सप्लेन किया मैंने. A डॉट B क्रॉस A is becoming 0. 2 of the 3 vectors same. A dot C cross A is 0. B dot B cross C equals to 0.
बी डॉट बी क्रॉस ए इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा आपका ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता है और रिवीजन भी होता है। इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना होगा कि व्हेन आई से ए डॉट बी क्रॉस सी वुड बी इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए एंड वुड बी इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस ई। साइक्लिक ऑर्डर में सब सेम रहेंगे, दैट वुड बी इक्वल्स टू बॉक्स ए बी सी आप लिख सकते हैं। आप कहीं पर भी अगर ऑर्डर चेंज करते हैं एबीसी बीसी या सी ए बी, अगर कहीं ऑर्डर चेंज करते हैं, लेट्स से एबीसी की जगह एसीबी किया आपने तो माइनस साइन वुड अपीयर देयर। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज सेम एज ऑफ बी डॉट सी क्रॉस ए, एबीसी बीसी सी ए बी, so it is box ABC would be equals to twice of these two are same is equals to 0। और डेफिनेटली इसका सीधा सा मतलब हुआ कि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर है। तो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया एज वेल एज रिलेटेड कंसेप्ट्स जो हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिलेटेड वो भी डिस्कस किए। दैट ओके।